Good morning and Jai Hind to all. Students, we are going through the chapter The Age of Industrialization. In this chapter, we are in the process of the study of industrialization process, how it was held. As you know, industrialization was held in second half of 18th century. But before that, we have already studied what happened in 17th century and in the 18th century. Means before industrialization, how the production was held. Already we have studied yesterday that how the production was held before industrial revolution. It means in 17th and 18th century how the merchant in Europe start moving towards the countryside for their production to fulfill the demand in the different colonies. That was known as proto-industrialization. Today we will see about the beginning of industrialization, that is the coming up of the factories. जब फैक्ट्रियां जो है वह ब्रिटेन में लगने लगी. As we know that industrialization start in the second half of 18th century, but actually the different factories they have started in the first half of 18th century, but it really expanded in the second half of 18th century. The first factory was set up in England in 1730. 1730s में फैक्ट्री स्थापित हुई, लेकिन उसके विस्तार होते होते 18वीं शताब्दी के आप कह सकते हैं 80वें दशक में 1780s में बहुत तेजी से विस्तार देखने को मिला. नाउ लेट अस सी ये नई नई फैक्ट्रियों के आने से क्या क्या परिवर्तन हुआ. लेट्स स्टार्ट व्हाट एनसीईआरटी इज सेइंग. द कमिंग ऑफ द फैक्ट्री, we will see that how the factory started, that is the coming up of the new factories. The earliest factory in England came up by 1730, but it was only in 18th century that the number of it was only in the late 18th century that the number of factories multiplied. So 18th century के फर्स्ट हाफ में ही 1830s में ही फैक्ट्री आना शुरू हो गई थी, लेकिन 18th सेंचुरी के लास्ट में जा कर के इनके नंबर में तेजी से इजाफा हुआ. But it was only in the late 18th century that the number of factory multiplied. The first symbol of new era was the cotton. जो नया जो पहला सिंबल देखने को मिला नए युग का वो था कॉटन. मीन्स कॉटन इंडस्ट्री शुरुआत में काफ़ी डेवलप की फॉर द वी कैन से आउटपुट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन. The first symbol of the new era was cotton. Its production boomed in late 18th century. 18th century में नई फैक्ट्रियों के आने से प्रोडक्शन तेजी से इंक्रीज हुआ. In 1760s, Britain was importing 2.5 million pound of raw cotton to feed its cotton industry. कॉटन इंडस्ट्री को फीड करने के लिए, कॉटन इंडस्ट्री की ज़रूरत को पूरा करने के लिए 18th सेंचुरी में ब्रिटेन 2.5 मिलियन पाउंड का रॉ कॉटन बाहर से मंगाता था, दूसरे देशों से मंगाता था. was importing 2.5 million pound of raw cotton to feed its cotton industry. By 1787, this import sold to 22 million pound. Means
27 ईयर बाद जो है ये जो आउटपुट जो मंगाने का जो क्रम था और लगभग 10 गुना इंक्रीज हो गया। बाई 1787 दिस इम्पोर्ट सोल्ड टू 22 million pound. This increase was linked to a number of changes within the process of production. यह कई सारे चीज़ों के बदलाव से ऐसा संभव हुआ। This number was linked to a number of changes within the process of production. Let us look verifying at the sum of these. यह कैसे हुआ कि 18th सेंचुरी के लास्ट में बहुत ज़्यादा रॉ कॉटन की डिमांड ब्रिटेन में होने लगी। A series of invention in 18th century increased the efficiency of each step of the production process. Series of invention means कई सारे आविष्कार हुए। A series of invention in 18th century increased the efficiency of each step of the production process, that is the carding, twisting and spinning and rolling. These all are the different process for the making of cotton. Cording जो है the process in which fibers such as the cotton or the wool are prepared prior to spinning. Spinning से पहले जब रॉ फाइबर को तैयार किया जाता है उसे कार्डिंग कहते हैं। तो ये अलग अलग प्रोसेस को करने के लिए अलग अलग मशीनों का निर्माण किया गया। कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग एंड रोलिंग। दे इनहेंस द आउटपुट पर वर्कर, इनेबल्ड ईच वर्कर टू प्रोड्यूस मोर। इन छोटे छोटे मशीनों के आ जाने से इनके प्रोडक्शन में काफी तेजी देखने को मिली। दे enhance the output per worker, enabling each worker to produce more, and they made possible the production of stronger thread and yarn. अब वो पहले से ज़्यादा मजबूत धागे और रेशे बनाने लगे। Then that is the Richard Arkwright created the cotton mill. कॉटन मिल बनाने का श्रेय जाता है रिचर्ड आर्कराइट को। रिचर्ड आर्कराइट ने कॉटन मिल की संरचना दिया। टिल दिस टाइम एज यू हैव सीन क्लॉथ प्रोडक्शन वॉज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री साइड एंड कैरिड आउट विद इन विलेज हाउस होल्ड। जब 18th सेंचुरी में रिचर्ड आर्कराइट ने कॉटन मिल की संरचना दिया तो उस समय तक जो प्रोडक्शन था वो गांव देहातों में हो रहा था। आपने देखा था 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी में किस प्रकार से प्रोडक्शन स्पेशली देहात एरिया में चल रहा था। यही कह रहा है टिल दिस टाइम एज यू हैव सीन क्लॉथ प्रोडक्शन वॉज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री साइड and carried out within village household. But now the costly new machine could be purchased, set up and maintained in the mill. ये फैक्ट्री के आ जाने से, रिचर्ड आर्कराइट द्वारा फैक्ट्री को लेकर आने से अब ये नई मशीन को खरीदा जा सकता था और उसको इंस्टॉल किया जा सकता था। Within the mill, all the process were brought together under one roof and management. मिल के आ जाने से सारी प्रक्रिया एक छत के नीचे करना संभव हो सका था। This allowed a more careful supervision over the production process, a watch over quality, and the regulation of labor, all of which had been difficult to do when the production was in the countryside. जब फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन होने लगा तो सारा प्रोसेस एक छत के नीचे आ गया, जिससे उनकी क्वालिटी को ऑब्जर्व करना आसान हो गया। जो लेबर थे वो रेगुलर आने लगे, समय पे काम होने लगा,
तो इन सब से जो है ये सारा कुछ संभव हो पाया क्योंकि एक फैक्ट्री के एक छत के नीचे ये सारी व्यवस्था हो पाई। अगर यही बिखराव होकर के पूरे देहात एरियो में होता था तो हम उतना कंट्रोल प्रोडक्शन पर नहीं कर पा रहे थे। फैक्ट्री के आने से ये हुआ कि हम अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रोडक्शन में तेजी ला सकते थे। इन द अर्ली 19th century, factory increasingly become an intimate part of English landscape. अर्ली 19th सेंचुरी 19वीं सदी के शुरुआत में फैक्ट्री का उदय होना, फैक्ट्रीज इंक्रीजिंगली बिकम एन इंटीमेट पार्ट ऑफ इंग्लैंड लैंडस्केप। इंग्लैंड के भूदृश्य के लिए यह एक अपरिहार्य अंग बन गया, जो है मीन्स एक अनिवार्य अंग बन गया। जिधर हम देखते थे 19th सेंचुरी में वो फैक्ट्री ही फैक्ट्री दिखाई देते थे। यू कैन सी इन द पिक्चर हियर। So, in the early 19th century, factory increasingly become an intimate part of England landscape, so visible were the imposing new mills, so magical seemed to the power of new technology that contemporaries were dazzled. So visible, इसको देख करके where the imposing new mills, जो ये नए मिल्स को हम देखते थे वह इतना जादू की तरह दिखता था। सो मैजिकल सीम टू बी पावर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी दैट कंटेम्पररीज वेयर डेजल्स, जो दर्शक थे उनकी आंखें चौधिया जाती थी। ये जो नई नई मिल ब्रिटेन के ज़मीन पर जब 19वीं शताब्दी का जो एक अंग बन गया, उसको देख करके आंखें रुक जाती थी और हम कल्पना करने लगते थे कि हम कहाँ आ गए। दे कंसंट्रेटेड देयर अटेंशन ऑन द मिल, ऑलमोस्ट फॉरगेटिंग दैट द बाइलेंस एंड द वर्कशॉप वेयर प्रोडक्शन स्टिल कंटिन्यू। और हम इतने मंत्रमुग्ध हो जाते थे कि हम भूल जाते थे कि अभी भी गलियों में और वर्कशॉप पे प्रोडक्शन जारी है, मीन्स लोग अपने हाथ से प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो मिलों के आने से उनके प्रति आकर्षण तेजी से बढ़ा, लेकिन उसके साथ साथ हम परंपरागत तरीके से जो हैंडलूम में प्रोडक्शन कर रहे थे उसको भी हम जारी रख पाए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो लेक्चर।